Hello students, in today's lecture we will do some numericals based on the topics of the conversion of galvanometer into an ammeter and the conversion of galvanometer into a voltmeter. So the first question is written in the board and the question is a galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current 2.5 milliampere. How will you convert it into, first point, an ammeter of range 0 to 7.5 ampere, and second point is a voltmeter of range 0 to 10 volt. So first of all students, I repeat the question. अगर आपको वीडियो में ये क्वेश्चन सही से रीड नहीं हो रहा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ. A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere and a voltmeter of range 0 to 10 volt? So first of all students, what we have given? We have given the resistance of galvanometer, which is 12 ohm. So G is equal to 12 ohm, shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. तो I think last दो lectures में मैंने आपको बताया था what is full scale deflection current, and the full scale deflection current is denoted by Ig. So it is given as 2.5 milliampere, or we can say it is 2.5 into 10 raised to power minus 3 ampere. Now we have to convert this galvanometer into an ammeter of range 0 to 7.5 ampere. तो हम first part solve करेंगे students. What is the range of ammeter given? The range of ammeter is denoted by I and given as 7.5 ampere. So what we have to do to convert a galvanometer into an ammeter? We have to connect a low resistance shunt in parallel with the galvanometer. Then it will be converted into an ammeter. So we have to find the value of shunt that should be connected with this galvanometer such that the required ammeter has a range of 7.5 ampere. So students, मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया था लास्ट क्लास में. S is equal to GIG upon I minus IG. This is the formula for shunt. So we can say GIG, I and IG is given. So by putting the values of the various terms, we got 12 into the value of IG is 2.5 into 10 raised to power minus 3 upon. What is the range of ammeter? It's 7.5 minus 2.5 into 10 raised to power minus 3. Now students, you can see that S is equal to 12 into 2.5 into 10 raised to power minus 3. थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास है 7.5 माइनस 2.5 इंटू रेशियो माइनस 3. इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 7.5 माइनस 0.0025. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 7.5. सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर. सो अगर आप इसे नेग्लेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इसके लिए 0 पुट करना है. सो इट बिकम्स 7.5. सो वी कैन से द आंसर विल बी 4 into 10 raised to power minus 3 ohm, or we can say 0.004 ohm is the shunt resistance that should be connected in parallel with the galvanometer to convert it into an ammeter of range 7.5 ampere. So students, this is our first part. Now in second part we have to convert this galvanometer into a voltmeter of range 0 to 10 volt. But we have given a range of voltmeter which is 10 volt. We have given Ig, we have given resistance of galvanometer. So students,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर वी हैव टू कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैलोमीटर. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट हाई रेजिस्टेंस. सो दिस इज डिनोटेड एज आर. तो इस आर की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, जिसको हमें पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करना है गैलोमीटर के साथ, so that it can be converted into a voltmeter of range 10 volt. So for this we have the formula. इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्राइव कराया स्टूडेंट्स. R is equal to V upon Ig minus G. This is the required expression. So we have to find the value of R. The range of voltmeter is 10. Ig is 2.5 into 10 raised to power minus 3 minus what is G? 12 volt. So you can write it. आप से सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स. ये 10 माइनस 3 ऊपर आएगा, 10 प्लस 3 बन जाएगा माइनस 12. और चाहे तो आपसे एक जीरो यहाँ लगा दीजिए, नीचे 25 कर दीजिए. तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आएगा 4000. So R is equal to 4000 minus 12, which comes to be 3988 ohm. So it means this resistance 3988 ohm should be connected in series with the galloometer so that it will be converted into a voltmeter of range 10 volt. So this is our first question. Now our next question is question number second, third written on the board. So हम पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद जाएंगे सेकंड में. वैसे दोनों ही क्वेश्चन आइडेंटिकल हैं, एक जैसे ही सॉल्व होंगे, इसलिए मैं पहले थर्ड सॉल्व करूंगा फिर हम सेकंड सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ सर्टेन रेंज बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 980 ohm in series with it. When a resistance of 470 ohm connected in series, the range is half. Find the resistance of galvanometer. तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को. तो हमें पहले गिवन किया है वो पढ़ने से ध्यान से समझ लेते हैं. इसको पहले समझ लेते हैं कि हमें गिवन किया है. हमें गिवन है स्टूडेंट्स की एक गैलोमीटर है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर में ऑफ सर्टेन रेंज. तो रेंज हमें गिवन नहीं है, तो उस रेंज को हम एज्यूम कर लेंगे. सो लेट द रेंज ऑफ वोल्टमीटर बी V. क्लियर. अब ये जो हमने गैलोमीटर को चेंज किया है वोल्टमीटर में ऑफ गिवन रेंज V, कब चेंज किया हमने इसको? जब हमने के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ है 980 ओम का. ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस? R इज इक्वल टू जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं V अपॉन Ig माइनस G. यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप फॉर्मूला इसे दोबारा से बना सकते हैं. R इज इक्वल टू, थोड़ा रिराइट करेंगे इस फॉर्मूले को, V Ig इंटू G अपॉन Ig, और आप यहां पे से Rig इज इक्वल टू V माइनस Ig इंटू G, एंड वी कैन से Rig प्लस Ig इंटू G इज इक्वल टू V, और वी कैन से Ig इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G. ये मैंने फॉर्मूला बना दिया स्टूडेंट्स Ig के लिए इन टर्म्स ऑफ V, R एंड G. सो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? द रेंज ऑफ वोल्टमीटर हमने एज्यूम कर लिया V. द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज R, which is given as 980 ohm, and the resistance of galvanometer, this is unknown quantity, ये हमें सॉल्व करना है. और Ig भी हमें गिवन नहीं है, तो दोनों टर्म्स हमारे अननोन है. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए. Ig इज इक्वल टू V हमने एज्यूम किया हुआ, द वैल्यू ऑफ R इज गिवन एज 980 ओम प्लस G. सिमिलरली केस अगेन, what is case again? When a resistance is
470 ohm connected in series. The range is half. अगर मैं इसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 980 रेजिस्टेंस को हटा के 470 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं तो जो रेंज है वोल्ट मीटर की वो हाफ हो जाती है. ठीक है, तो पहले रेंज कितनी थी? V थी. ठीक है, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप यूज करेंगे IG इज इक्वल टू, पहले केस में रेंज V थी, हमने एज्यूम की हुई है. इस केस में अब रेंज कितनी हो गई स्टूडेंट्स? इट्स हाफ, तो इट्स V/2. What is the resistance in this case? It's 470 ohm. 470 plus G is unknown. So this is equation number first. This is equation number second. On comparing, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इनकी IG चल रही है तो हम इक्वेट कर सकते हैं from 1 and 2. We can say that V upon 980 plus G is equal to V upon 2 470 plus G. यहाँ पर अगर सॉल्व कर सकते हैं तो BCD कैंसिल आउट. So the result, final result becomes 2 into 470 plus G is equal to 980 plus G. यहाँ पे हमने V से V को कैंसिल किया और then फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स. फिर आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं तो इट बिकम्स 940 plus 2G is equal to 980 plus G. और we can say G is equal to 14. यहाँ से हमने फाइंड कर लिया द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको. ये हमने फॉर्मूला कल से पढ़ रहे हैं, इसको लास्ट लेक्चर से इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं. आज हमने यहाँ से इसी फॉर्मूले से IG की वैल्यू क्यूट कर ली और देन अपने दोनों की कंडीशंस. पहले केस में रेंज ऑफ वोल्ट मीटर V है तो रेजिस्टेंस है 980 ओम का, यहाँ से हमने इक्वेशन क्रिएट कर दी. सेकंड केस में हमने रेजिस्टेंस 470 यूज किया है इन सीरीज तो रेंज ऑफ बोल रहा है हाफ हो गई तो हम V/2 कर दिया और देन G और IG तो सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों ही केस में हम एक ही गैल्वेनोमीटर को चेंज कर रहे हैं दो डिफरेंट वोल्ट मीटर्स में. तो G दोनों कंडीशन में G और IG दोनों कंडीशन में सेम ही रहेंगे. तो यहाँ से हम इनको इक्वेट कर सकते हैं और हमें आंसर फाइंड कर लेते हैं 14. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, ये भी डिफरेंट सिमिलर क्वेश्चन है. आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें, a galvanometer of resistance G can be converted into a voltmeter of range 0 to V volts by connecting a resistance R. देखिए स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पर सेम क्वेश्चन. हमें एक गैल्वेनोमीटर गिवन है having resistance G and this galvanometer is converted into a voltmeter of range 0 to V by connecting a resistance R in series. ठीक है, how much resistance will be required to change its range from 0 to V/2. अब हमें ये फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस हम कितना यूज करें इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर सो दैट द रेंज ऑफ दिस वोल्टमीटर बिकम्स V/2. पहले केस में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस यूज किया R विद गैल्वेनोमीटर G. देन यहां से जो हमें वोल्टमीटर वाला उसकी रेंज कितनी गिवन की हमें V गिवन की हुई है. ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स कि अब मैं कितना रेजिस्टेंस ऐड करूं सेम गैल्वेनोमीटर के साथ सो दैट द रेंज ऑफ दिस वोल्टमीटर बिकम्स V/2. मतलब लेट R dash द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर सो दैट इट्स रेंज बिकम्स V/2. तो मिस R dash को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे मेथड यूज करेंगे. तो अभी क्या हमने फॉर्मूला बनाया था स्टूडेंट्स आपको, वो था यहाँ से IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G. ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया था. तो हो गया हमारी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ये केस फर्स्ट है हमारे पास. अब केस सेकंड, IG की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर में गिवन है वो सेम ही है. रेंज ऑफ वोल्टमीटर हमें इसमें कितनी एज्यूम करा ली, V/2 कर दिया रेंज. रेजिस्टेंस जो हम यूज कर रहे हैं इस केस में वो राइट इट विल बी R dash एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल G. तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड.
देखिए स्टूडेंट्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि जब गैलोमीटर का रेजिस्टेंस G है, उसके साथ हमने सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड किया R, तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर है वो है V, ये भी गिवन था। सेकंड केस में कंडीशन ये गिवन है, सेम गैलोमीटर हमारे पास है, उसके साथ में कितना रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करूं सो दैट इट्स रेंज रिड्यूस टू V by 2। ठीक है, तो लेट द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज R dash and the range becomes V by 2। Now equating these two equations, we can say from 1 and 2, V upon R plus G is equal to V upon 2 R dash plus G. V easily cancel out. So 2R dash plus 2G is equal to R plus G, or we can say 2R dash is equal to R minus G, and we can say R dash is equal to R minus G upon 2. This should be the resistance that should be connected in series with the same galvanometer to reduce its range to V by 2. So I hope students, ये दोनों क्वेश्चंस या तीनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आप इसके बेस क्वेश्चन अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड we will continue next lecture from tomorrow.